So today we will start with semiconductor memories. So in semiconductor memory, we will talk about two types of memory. One is RAM and one is ROM. So RAM, you are familiar now that whatever the current thing you are doing in your system with your PC, it will store in RAM. RAM stands for random access memory, and ROM is read only memory. Read only memory. It is also called read writable memory. Read writable means it is basically used for storing the information, and if informations are already stored you can read it. Means you can read it if something is there, and you can write it to store information in random access memory. But here in this case of ROM, you can only store information with the already information is there, and you can only read uh, that information. You cannot write on it. तो random access memory जो है, RAM is basically, it is a place in a computer where the operating system, application programs and data in current use are kept so that they can be quickly reached by the computer's processor. ठीक है, तो whatever the current thing we are doing, मीन्स जो भी हम प्रोसेसर को सबसे पहले प्रोसेसर को चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, तो इट विल नॉट टेक फ्रॉम हार्ड डिस्क, इट विल फर्स्ट लोड हार्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, एंड देन फ्रॉम रैम इट विल टेक। सो प्रोसेसर की जो स्पीड है उसको मैच करने के लिए, और जो इसमें रीडिंग और राइटिंग होती है रैम में, दैट इज़ फास्टर देन अदर डिवाइसेस लाइक योर हार्ड डिस्क। तो इसलिए whatever the current thing, operating system, application program, first it should load in the RAM. Understood? So it is used for temporary storage. ये किस लिए यूज होती है? It is used for temporary storage, and when switched off, and when you switch off the system, any information stored in RAM is lost. Okay, so it is, that's why it is called volatile memory. It is called volatile memory, and this is also called scratchpad memory. Okay, so volatile means कि when the power becomes off, whatever data is stored in RAM will go. It is दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। तो जब भी हम सिस्टम में काम कर रहे थे करेंट, तो हम बोलते हैं ना सेव करते रहो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो रैम में जाके स्टोर हो रहा है, एंड इफ सडनली पावर गोज, देन द वॉट एवर द करेंट थिंग हम जो कर रहे होते हैं वो सब उसमें से इरेज हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। ओके, so RAM is much faster to read from and write to than the other kind of storage in a computer, like hard disk उससे सबसे फास्ट होती है, इसलिए जो भी हम करेंट काम करते हैं तो वो रैम में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट इज Ma'am, ma'am, library files of C++ goes in which memory? लाइब्रेरी फाइल्स ऑफ C++? हाँ मैम, दैट वो इज द कौन सी पार्ट मेमोरी? ऑफ सॉफ्टवेयर ना बेटा। तब जब सॉफ्टवेयर लोड होगा तो पूरा का पूरा पार्ट उस पर ही लोड हो जाएगा ना रैम में। दिस इज जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन C++। So when you are working on this, so whatever the things are there in C++ software, it will all will be there in your RAM, or in the part of some or some part in hard disk if it is a virtual memory concept. ठीक है ना, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, only we don't require everything should be in RAM. Some part is in hard disk, so whatever the current thing we need, it will come in the RAM. So that is your this library files, header files, all are part of your software. तो जब सॉफ्टवेयर लोड होगा तो वो फाइल्स भी उसके साथ साथ ही रैम में आ जाएंगे।
Okay. So this ROM is called non-volatile memory. ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है. नॉन वोलेटाइल मीन्स इट इज रीड ओनली मेमोरी, built in computer's memory containing data that normally only be read, not be written. The ROM contains the programming that allows your computer to be booted up or regenerated each time you turn it on. So whatever the things, see, this ROM is designed by manufacturer or written by manufacturer. और उसमें कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जो कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जितने भी पेरिफेरल्स हैं, उनको कम्युनिकेट करता है विद सॉफ्टवेयर, विद ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको कनेक्ट करता है. तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स उसके अंदर स्टोर होते हैं. जैसे रोम का एग्जांपल जो है, जो मैन्युफैक्चरर साइड से आता है, दैट इज़ बायर्स. बायर्स इज बेसिकली, इट इज़ अ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. तो इसके अंदर सब उस तरह के प्रोग्राम हैं दैट लेटिंग योर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड द हार्डवेयर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. और इसके अंदर पोस्ट भी रहता है. बायोस में पोस्ट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, power on self test. So the BIOS also contains a program called power on self test, and this checks the motherboard and other devices connected to computer during the system power on time. So ROM जो है, in ROM the manufacturer stores information, and once it is stored the memory cannot be erased or changed. So computer can only read this memory to carry out various operations. Understood the understood the difference between RAM and ROM. And RAM and ROM, RAM are made. It is consists of further divided into two parts. One is static RAM and one is dynamic RAM. ठीक है, हम एस रैम, डी रैम जो बोलते हैं. स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या डिफरेंस है? बेसिकली डिज़ाइनिंग में डिफरेंस है, दैट इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स. ट्रांजिस्टर्स मतलब हमने देखे ही थे कि फ्लिप फ्लॉप से हम फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप से ही हमारा मेमोरी बनता है. तो फ्लिप फ्लॉप इज मेड अप ऑफ गेट्स एंड गेट्स आर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स. सो the static RAM is made up of transistor and dynamic RAM is made up of capacitor, where data is stored in the form of charge. क्योंकि कैपेसिटर है तो जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चार्ज. तो अभी चार्ज शुड नॉट गेट डिस्चार्ज, तो दिस मेमोरी नीड्स continuous refreshing so that charge should not discharge. तो और जो डेटा है वो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चार्ज. अगर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमारा डेटा का भी लॉस हो जाएगा. अंडरस्टूड. तो जो स्टैटिक रैम है, दिस स्टैटिक रैम इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर and dynamic RAM is made up of capacitor to store each bit of data. And SRAM, it does not require any refreshing circuit. ठीक है, it does not require any refreshing circuit, but DRAM needs periodic refreshment to maintain the charge in the capacitor of data. तो एस रैम का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू डी रैम, एंड इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो बट फास्टर. इसलिए इसको हम ज़्यादा करके जो कैश मेमोरी होती है उधर यूज़ करते हैं, और ये नॉर्मली रैम डिज़ाइन करने के लिए मेन मेमोरी जैसे हम बोलते हैं. नॉट रैम, मतलब हम रैम के बारे में ही बात करें तो मेन मेमोरी वी कैन डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक रैम. अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. सो दिस इज अबाउट स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम. तो कई बार क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी. तो वोलाटाइल मेमोरी यू शुड नो, नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या है, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम, स्टैटिक एंड डायनेमिक.
तो स्टेटिंग के 3-4 पॉइंट दैट इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर, इट इज मेड अप ऑफ कैपेसिटर, नो रिफ्रेशिंग सर्किट इज require refreshing circuit, it is faster, it is expensive, it is used in cache memory, circuit is more complex. So these kind of differences you can write for static and dynamic RAM. Now ROM has also various type, like first is masked ROM. Ma'am, Yes. Then ma'am, all the information which come with the Windows goes in ROM, right? which window? Means Windows 7, which comes with BAR. All the information. Say it again. When we open the window or the computer, it Yeah, shows us that operating system ना, Windows 7 is your yes, ma'am. operating system. तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है, that is your operating system software. So that should load in RAM first. First it will load in the RAM, then only you are able to work with your system. तो उसके बाद जब जो जो आप एप्लीकेशन ओपन करते जाओगे, जो भी आप काम कर रहे हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही ओपन होगा एंड वो भी सब रैम में आएगा। ठीक है, तो इसलिए वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी इसमें है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्ट इज देयर, but some part it can be in hard disk, some part it can be in RAM. So whatever the current thing you are doing, that should come in the RAM, but operating system सबसे पहले लोड होगा, उसके बिना it will not go. Okay. Now next is mass PROM, PROM, EPROM and EEPROM. So these are the uh, types of ROM, read only memory. तो अभी mass PROM क्या है? Mass PROM is same like your ROM, which is basically designed by manufacturer to store permanent information, and BIOS or post is, these are the examples of this. BIOS is the example of mass PROM, जहाँ पे BIOS क्या है अभी मैंने बताया ही था कि it is basically a program that allow your application program and hardware to interact with each other. Okay, and it also contains post, that is a program called power on self test, and this checks the motherboard and other devices connected to computer during the system power on time. मतलब ये सारी चीज़ें चेक करता है आपके सिस्टम में कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपके सिस्टम के साथ, और जो भी अंदर का इंटरनल सर्किट है, everyone is getting proper power or not. That's why it is called power on self test. तो जब सबको उसे लगता है कि सबको पावर प्रॉपर मिल रही है, देन इट विल स्टार्ट बूटिंग। तो सबसे पहले यही लोग एक्टिवेट होते हैं, यही बायस और उसका पोस्ट एक्टिवेट होता है, उसके बाद बूट जो बूटिंग है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ROM is just like your this mask ROM is just like your ROM. And what is the difference between PROM and ROM? So PROM stands for programmable ROM, programmable read only memory. So programmable read only memory is the ROM that can be modified once by a user. Once it can be modified once by a user. The basic difference between ROM and PROM: in case of ROM, manufacturer decides the data of the memory, and in case of PROM, user can decide the data of memory by special method of programming. तो हियर वी एज अ यूज़र कैन ऑल्सो राइट, भाई मैंने कोई अपनी ही एप्लीकेशन डिज़ाइन की, अपना ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया टू ड्राइव द हार्डवेयर, किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, तो उस हार्डवेयर में मुझे वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करना पड़ेगा ना। तो वी हैव दैट आईसी और वहाँ पर हम अपना सॉफ्टवेयर एक मतलब लोड कर सकते हैं, सो दैट माई हार्डवेयर और माई अदर जो द डिवाइस वर्क प्रॉपरली। तो वो जो प्रोग्रामिंग है वो हम कर सकते हैं, तो इसमें एक ही बार अलाउ होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है वो बर्निंग है, फ्यूज़ करना है ट्रांजिस्टर जो उसमें लगे रहते हैं, डायोड्स का जो मैट्रिक्स जो भी रहता है उसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं बाय बर्निंग मेथड,
और एक बार वो बर्न हो गया तो फिर उसके बाद आप उसमें फिर से स्टोर नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली। बट एक बार आप कर सकते हो, इसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैन्युफैक्चरर ही ये काम करता है। और बट यहाँ पर एज अ यूज़र और प्रोग्रामर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज EEPROM. EEPROM is erasable programmable read-only memory. The erasable programmable read-only memory means here you can erase and program again and again as many times as you want. That's why its name is erasable programmable read-only memory. So in EEPROM can be programmed number of times. Or how we will erase the data? So user can erase the data by exposing them to ultraviolet light, UV rays और sunlight. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो चिप है, आईसी है, दैट यू नीड टू रिमूव फ्रॉम द मेन सर्किट। आपको इसे डीसोल्डर करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप उसको सनलाइट में रखोगे फॉर मेनी आवर्स। ठीक है, तो जो इरेजिंग टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा है। फिर मेन सर्किट से रिमूव करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। और उसके बाद जब आप इसको सनलाइट में रखते हैं तो इट टेक्स मेनी आवर्स एंड देयर मे बी आर चांसेस कि वो पूरा इरेज ना हो। ठीक है, तो दिस इज द अनदर डिफिकल्टी व्हाइल इरेजिंग द ओल्ड डेटा। इफ इट इज नॉट इरेज्ड प्रॉपर्ली then the user cannot correct or erase the old data after programming the new data. So these are some disadvantages of these, that main circuit में से you need to remove. Second, you have to keep in sunlight for many hours, so erasing time will be more. And third one is that there may be a chances कि some old data जो है वो आईसी में ही रह जाए। तो इसको ये कैसे दिखता है, आप अगर देखोगे नेट पे भी आप देख सकते हो, इस पे एक ग्लास विंडो रहता है। ठीक है, और इस ग्लास विंडो से ही डेटा को इरेज किया जाता है। इसको एक्सपोज कर, वैसे जब आप प्रोग्राम कर देते हो तो इस पे एक स्टिकर लगा दिया जाता है, एंड इफ़ यू वांट टू रिमूव तो यू जस्ट रिमूव द स्टिकर एंड कीप इट इन द सनलाइट, तो जो डेटा है स्लोली स्लोली इरेज हो जाता है। दैट इज योर EEPROM। Ma'am, this is done multiple times or only once? नहीं, मल्टीपल टाइम। प्रॉम कैन बी डन ओनली वंस एंड हियर एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। नेक्स्ट जो है EEPROM। अभी यहाँ इसकी जो डिफ़िकल्टी है कि मेन सर्किट में से रिमूव करना, सनलाइट में रखना फॉर मेनी आवर्स, एंड देन देयर मे बी अ चांसेस ऑफ ओल्ड डेटा। तो वी हैव दिस EEPROM, इरेजेबल, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रॉम। So electrical means, as its name is saying, that you can remove data by passing high voltage signal in this EEPROM। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो नॉर्मल वोल्टेज यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा हाई वोल्टेज पास करके वी आर एबल टू रिमूव द डेटा, एंड देन वी कैन पास और वी कैन प्रोग्राम विद द न्यू कोड्स। तो उसमें क्या है कि हमें मेन सर्किट से भी नहीं निकालना पड़ रहा है, हम लोगों को उसको सनलाइट में भी नहीं रखना पड़ रहा, और पुराना डेटा भी इसमें नहीं रहता। तो जैसे बायोस कई बार इस तरह से EEPROM से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि कई बार हम बायस अपग्रेड भी करते हैं, तो बायस अपग्रेड का जो आता है तो उसमें सबसे पहले पुराना रिमूव होता है और नया ऐड होता है। तो फ्लैश मेमोरीज जैसे रहती है ना, उस तरह से। So this is the concept of ROM, read only memory. तो now you understood this concept। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन इसी पे बनता है, टाइप्स ऑफ ROM। तो 4 मार्क्स में यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल 4, नॉर्मल ROM, PROM, EEPROM एंड EEPROM। और कई बार आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी, सो यू विल राइट अबाउट in brief all RAM, ROM, types of ROM and this, or everything you have to write in 4 marks। And कई बार question आता है write the difference between static RAM and dynamic RAM, so that also you should know। So this is your semiconductor memories। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज योर कंट्रोलर।
Next topic is controller. Now, what is controller? Controller is basically it is a device that controls the transfer of data from computer to a peripheral device and vice versa. See, your computer is there, CPU, और उसके साथ input लगाया, mouse लगाया, printer, monitor and other devices also, even hard disk, ठीक है, CD-ROM drive and other inside devices are there जो कि डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस. ठीक है, कीबोर्ड से डेटा जाएगा, माउस से क्लिक करोगे, मॉनिटर पे डेटा दोगे, डिस्प्ले के लिए, प्रिंटर पे डिस्प्ले के लिए डेटा दोगे. तो ये जो डेटा ट्रांसफ़र है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसे हम बोलते हैं कंट्रोलर. तो इट इज़ अ कंट्रोलर इज़ अ डिवाइस दैट ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू पेरिफेरल एंड वाइस वर्सा. तो जब भी जितने भी मैम डिस्क हैं, डिस्प्ले स्क्रीन, कीबोर्ड्स, प्रिंटर्स, ऑल रिक्वायर्स कंट्रोलर्स. यस, यस प्लीज. मैम पेरिफेरल डिवाइस के एग्जांपल दे सकते हो? पेरिफेरल्स बेटा आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. पेरिफेरल्स कीबोर्ड, इनपुट. हाँ, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी, मॉनिटर, प्रिंटर, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस, उन सबको हम पेरिफेरल्स बोलते हैं. आपने ये चैप्टर अभी, लास्ट चैप्टर है ना ये, पेरिफेरल्स. तो पेरिफेरल्स आर ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. तो इन पीसी द कंट्रोलर जो है बेसिकली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आईसीज, सिंगल चिप. आप मदरबोर्ड पे देखते हो ना, बहुत सारे आईसीज, बड़े बड़े चिप्स रहते हैं. तो दीज आर नथिंग बट सम कंट्रोलर्स. कुछ तो कंट्रोलर्स उसमें होते हैं जो हर एक, जैसे कीबोर्ड का कंट्रोलर है, then we have a hard disk controller, we have floppy disk controller, we have DMA controller. इस तरह से बहुत सारे जो हैं आईसीज उस पर कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड पे, जो कि हेल्प करते हैं आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करके. और जब डिवाइस से डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाने के लिए. ठीक है. तो अभी आप अगर देखोगे तो नॉर्मली इन योर सिलेबस वी विल टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ कंट्रोलर. वन इज डिस्क कंट्रोलर एंड द सेकंड इज डीएमए कंट्रोलर. तो व्हाट इज डीएमए? डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. तो ये आपको ट्वेल्थ में भी है. This topic is there in 12 with 8085 microprocessor. So direct memory access, what do you mean by that? See, जब भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं it has to be via processor. मीन्स मैंने अगर डेटा ट्रांसफ़र किया तो पहले वो प्रोसेसर के पास जाएगा. मतलब कीबोर्ड से अगर डेटा ट्रांसफ़र हुआ है किसी और या मेमोरी में जा रहा है या हार्ड डिस्क में स्टोर होने जा रहा है, तो कीबोर्ड पहले उसको प्रोसेसर को देगा, प्रोसेसर उसे देखेगा और उसको वहाँ हार्ड डिस्क में भेज देगा. क्यों ऐसा? क्योंकि कंट्रोल एड्रेस बस और डेटा बस का किसके पास होता है? सीपीयू के पास, प्रोसेसर के पास. तो और डेटा ट्रांसफ़र में क्या यूज़ हो रहा है? डेटा ट्रांसफ़र में एड्रेस बसेस और डेटा बस. ठीक है. तो प्रोसेसर डेटा ट्रांसफ़र के टाइम कुछ नहीं कर रहा, कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, सिंपली टेकिंग डेटा, चेकिंग डेटा कि उसका कुछ प्रोसेसिंग नहीं है और उसको ट्रांसफ़र कर रहा है. तो अननेसेसरी प्रोसेसर इज एंगेज्ड इन दिस वर्क. उसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्रोसेसर की, क्योंकि प्रोसेसिंग पार्ट है ही नहीं डेटा ट्रांसफ़र में. और उस टाइम पे वो कुछ और काम कर सकता है, बट उसके लिए उसको हमें ज़रूरत पड़ती है एक डीएमए डिवाइस की, जो कि प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में लगा होता है. एंड वेन एवर देर इज़ अ डेटा ट्रांसफ़र, DMA controller will take the control of address and data bus, or it will request address and data bus from processor. You give me address and data bus, I will take the responsibility of transferring data. You do your other work. और फिर प्रोसेसर जो है वो उसको कंट्रोल दे देता है एड्रेस और डेटा बस का, और डीएमए जो है वो डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र कर देता है विदाउट प्रोसेसर हेल्प. अंडरस्टूड. तो दैट इज़ द जॉब ऑफ डीएमए. डीएमए का जॉब क्या है?
just to transfer data from one device to another without processor's help. It will take the address and data bus control. It will request the data and address bus control from processor. Processor will give that address and data bus. Now processor is free for other things. Or DMA will take the charge to transfer data from one place to another place. So this is only for data transfer. When you are transferring large amount of data, then there is no need that processor should be in between. सो डीएमए डिवाइस हम लगा देते हैं जिससे डेटा फास्ट ट्रांसफ़र हो जाता है और सीपीयू जो प्रोसेसर है वो भी बिजी किसी और काम में हो सकता है, उसको डेटा ट्रांसफ़र के टाइम पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। और जो डिस्क कंट्रोलर होते हैं दैट इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग द डेटा ट्रांसफ़र ऑफ डिस्क। डिस्क मतलब हार्ड डिस्क हो गया आपका, फ्लॉपी डिस्क हो गया, और सीडी रोम ड्राइव जैसे डीवीडी रोम ड्राइव, ये सब क्या है हमारे डिस्क है। तो हम हमारे लिए इसके लिए स्पेशल कंट्रोलर होता है जिसको हम डिस्क कंट्रोलर बोलते हैं। जैसे हार्ड डिस्क के लिए वी हैव एच डी सी, हार्ड डिस्क कंट्रोलर। फ्लॉपी डिस्क के लिए वी हैव एफ डी सी, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर्स हम यूज़ करते हैं। और ये सब जो ये कंट्रोलर्स हैं इसके साथ क्या कनेक्ट होते हैं, कनेक्टर्स रहते हैं जहाँ पे हम उनका हार्ड डिस्क का जैसे थ्रू अगर आपने कभी कंप्यूटर ऑन किया तो उसमें केबल्स रहते हैं, रिबन केबल्स, तो हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट होते हैं। एंड इफ़ यू हैव लैपटॉप तो डायरेक्ट इट विल गो इन दी सॉकेट। तो वो जो है दैट टाइप ऑफ बसेस जो हम यूज़ करते हैं कंट्रोलर में, एटी बसेस यूज़ करते हैं, पीसीआई बस यूज़ करते हैं, स्कजी आपने सुना होगा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। साटा की हार्ड डिस्क आती हैं, स्कजी की हार्ड डिस्क आती हैं, आईडी पहले आता था। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टर्स हैं जहाँ पे हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है, और फिर वो हार्ड डिस्क के जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ वाया एच डी सी कंट्रोलर। मैम अंडरस्टूड? मैम अगर कोई डेटा ट्रांसफर में मिस्टेक हो तो क्या डिस्क कंट्रोल उसे डिटेक्ट कर पाएगा जो प्रोसेसिंग से जा रहा है? डेटा ट्रांसफ़र में कैसे मिस्टेक होगी? नहीं, उसको वो क्यों डिटेक्ट करेगा? अगर फिर हाँ, मैम तो उसका जब वो दूसरे डिवाइस पे पहुंचेगा एंड व्हेन यू आर यूजिंग फॉर प्रोसेसिंग एंड दैट टाइम इफ समथिंग इज रॉन्ग देन इट विल आस्क फॉर रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा। हाँ यस मैम। ओ, Okay, so this is about controller. So we have done this controller and DMA. So it is itself is a individual question. What is controller and what are the different types of controller? And there may be a question on this DMA. Write a short note on DMA controller or DMA. And it is there in your 12th standard also. We will talk about this DMA with 8085 microprocessor also. I hope it is clear till now. What are the different types of semiconductor memories and what is controller? Is it okay? Clear है यहाँ तक?